morning to all of you. We have been hearing since morning on various topics. First we talked about technical education, then school education, then mainstream education, and now Dr. Trivedi spoke about many problems which the country is facing on the whole, not only on education. There was bilingualism in speaking, some were speaking in English, some were speaking in Hindi. But I also feel like Dr. Sahasrapute was saying that if the audience is such which understands Hindi, we should speak in Hindi. Is there anyone here who doesn't understand Hindi? You can raise your hand. So everybody understand Hindi? So let us talk in Hindi because I read a poem by Pritam Singh Pritam which goes like this. There are two sentences. This says, तुम स्वतंत्र कहते हो खुद को, बोलो किस परिभाषा में? तुम स्वतंत्र कहते हो खुद को, बोलो किस परिभाषा में? हस्ताक्षर भी करते हुए विदेशी भाषा. So when I read this poem, I thought कि जहाँ पे अपनी भाषा समझते अपनी भाषा में बात करना चाहिए, क्योंकि अपनी भाषा में दिल से दिल की बात होती है. English is a foreign language, but then nowadays people feel that if you don't speak in English, you are illiterate. English is considered as a language of elite. So we have to speak in English to tell that yes, we know English, but Hindi is our preferred language. So I speak in Hindi. And higher education की बात करूँगी because मैंने पूरी ज़िंदगी higher education में काम किया है. First I was with the University Grants Commission. I was with University Grants Commission for around 30 years. Then I went as Vice Chancellor of a rural women university in Haryana, BPS Women University. And presently for last 6 years, this is my 7th year, as Secretary General of Association of Indian Universities. I am happy to see कि इतने सारे women यहाँ पे हैं. But AIU is 100 years old. 100 साल पुराना, इस साल हम अपनी सेंचुरी मना रहे हैं. इन 100 सालों में I am the second women secretary. In all these years I am the second one. And the first one was also सिर्फ 2 साल में नहीं थी. Fortunately I am spending the 7th year. So when we talk of higher education की जब हम बात करते हैं, NEP की बात करते हैं कि NEP बहुत डेमोक्रेटिक पॉलिसी है, इनोवेटिव पॉलिसी है. NEP में वो सारे गुण हैं जो कि भारत को फिर से एक विश्व गुरु बना सकता है. We were विश्व गुरु once upon a time, especially in the area of education. जब हमारे पास नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी थी 5th सेंचुरी BC में, जिसमें उस समय पे 10,000 फॉरेन स्टूडेंट्स करते थे फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री. और आज हम तरस रहे हैं फॉरेन स्टूडेंट्स. आज हम ये कह रहे हैं कि हमारे देश से 8 से 10 लाख बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए फॉरेन कंट्रीज में, या तो 10 से 12 लाख हो गए. और हमारे देश में कितने आते हैं? 49,000. और वो नंबर ऑलमोस्ट कांस्टेंट है पिछले 10 साल से, 48-49,000. तो इतना बड़ा गैप क्यों है? 49,000 अंदर आ रहे हैं. वो भी कहाँ से आ रहे हैं? 25% ऑफ 49,000 आते हैं नेपाल से, बाकी बांग्लादेश से, श्रीलंका से, पहले अफगानिस्तान से कुछ बच्चे आते थे, या फिर अफ्रीका से. अगर हम यूरोप की बात करें, अमेरिका की बात करें, या किस तरीके की बात करें, तो वहाँ से बच्चे हमारे पास नहीं आते हैं. In spite of the fact, India की education is a affordable quality education. USA की education है, UK की education affordable नहीं है. हमारे बच्चे इतना लोन लेके पिक हो जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए. पर हमारी affordable quality education है, इसके बावजूद बच्चे नहीं आ रहे. तो इसकी क्या वजह है? कैसे हम इंडिया को एक डेस्टिनेशन बनाएं, रादर ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाएं और अफोर्डेबल क्वालिटी हायर एजुकेशन. इसके ऊपर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत अच्छी पहल की है. मैं सिर्फ एक ही एस्पेक्ट पर बात करना चाह रही हूँ क्योंकि टाइम कम है. इंटरनेशनल एजुकेशन हायर एजुकेशन को, तो ये पहली पॉलिसी ऐसी है जिसने इंटरनेशनलाइजेशन पे इतना दिया. कैसे दिए? अब हमारे बच्चों को बाहर जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ खुद आ रही है इंडिया के डोर स्टेप पे to give foreign education if any Indian student wants a foreign education. और वो भी उसका कीमत कितनी हो जाएगी? ऑलमोस्ट हाफ. उनकी फीस भी हाफ होगी और लिविंग एक्सपेंसेस भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगी क्योंकि इंडिया की लिविंग एक्सपेंसेस में रहेंगे. तो ऑलरेडी 3 यूनिवर्सिटीज तो आ चुकी हैं, 2 ऑस्ट्रेलिया की, अहमदाबाद गिफ्ट सिटी में, और एक UK की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी गुड़गांव. ये 3 आ चुकी है. करीब 12 को LOI मिले हैं. यूनिवर्सिटी USA से भी, इलिनॉय यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, से हैं, UK से हैं, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा. 3 तो
अभी जब हमारी 5वीं सालगिरह जो डॉक्टर सीताराम जी के 5वीं सालगिरह जब मना रहे थे 1980 उसी दिन 3 MOU साइन हुए थे विद ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ कि वो हमारे देश में आ रही। तो अगर हमारे देश को हायर एजुकेशन चाहिए, बच्चों को फॉरेन हायर एजुकेशन चाहिए, द राइट एट द डोर स्टेप फॉरेन एजुकेशन फॉर अवर चिल्ड्रन एट सेकेंड। पहले हमारी यूनिवर्सिटीज़ को ड्यूअल डिग्रीज, जॉइंट डिग्रीज ये अलाउड नहीं थी, और अलाउड भी इसमें की थी यूजीसी ने, पर बहुत सारे अप्रूवल्स चाहिए थे। अब अगर आप एलिजिबल हैं हैव ए जॉइंट डिग्री, एलिजिबिलिटी की कंडीशन है अकॉर्डिंग 300 कि मैथ में ये रेटिंग में 300 होना चाहिए, या इमेजिनेट में 100 से ज़्यादा होना चाहिए, या वर्ल्ड रैंकिंग में 1000 के बीच में होना चाहिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप पार्टनरशिप कर सकते हैं किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी दे सकते हैं, ड्यूअल दे सकते हैं। तो उसमें क्या है कि हमारे बच्चे को उसी टाइम पीरियड में एक इंडियन डिग्री मिलेगी, एक फॉरेन डिग्री। तो दैट इज समथिंग जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज एक्सप्लोर कर रहे हैं। एट AIU एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में हमने एक नेटवर्क बनाया है, इंडियन नेटवर्क फॉर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, जिसमें हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ को हैंड होल्ड कर रहे हैं कि कैसे वो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOUs कर सकते हैं स्टूडेंट एक्सचेंज के लिए, फैकल्टी एक्सचेंज के लिए, सेमेस्टर एक्सचेंज के लिए, रिसर्च पार्टनरशिप्स के लिए, ड्यूअल डिग्रीज के लिए, जॉइंट डिग्रीज के लिए, एनी टाइप ऑफ पार्टनरशिप्स वी आर हैंड होल्डिंग अवर यूनिवर्सिटी। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारे देश में जो कुछ थोड़ी सी मतलब 10% ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं which are good in internationalization, जो करती हैं इंटरनेशनलाइजेशन, उन्हें अपना स्टाफ भी रखे हुए, एजेंट्स भी रखे हुए, सब रखे हुए, उनके पास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आते हैं और वो पार्टनरशिप्स भी करते हैं। बट 90% यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो करना तो चाहते हैं इंटरनेशनलाइजेशन, दे हैव एन इंटेंट टू इंटरनेशनलाइजेशन, पर उनको ये नहीं पता कि करें कैसे, कैसे पार्टनर ढूंढें, कैसे पार्टनरशिप करें, कैसे उनको अप्रोच करें, किस एरिया में पार्टनरशिप करें, किस तरह की पार्टनरशिप करें, किस यूनिवर्सिटी से पार्टनरशिप करें, किस देश से पार्टनरशिप करें। तो इसके लिए हमने ये इंडियन नेटवर्क फॉर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन बनाया, विच हेल्प्स द यूनिवर्सिटीज टू फाइंड द राइट पार्टनर। एट द सेम टाइम बहुत बार हमने ये भी देखा है, बिकॉज वी विजिट मैनी फॉरेन कंट्रीज, बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ कई बार ऐसे इंडियन पार्टनर के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं विच आर नॉट वेरी गुड एक्चुअली, बट उनके ब्रोशर्स बड़े क्लासी हैं, उनकी वेबसाइट बड़ी अच्छी है, उनका शो अप बहुत अच्छा है। तो वी टेल दोस फॉरेन यूनिवर्सिटीज व्हाई डोंट यू कम अप विद द बेटर यूनिवर्सिटीज, बोलते हैं हमें पता ही नहीं चलता कौन सी अच्छी है। तो जो भी वेबसाइट पे अच्छा दिखता है, या जिसके ब्रोशर अच्छे होते हैं, या जिसकी मार्केटिंग टॉक बहुत अच्छी है, उनसे वो पार्टनरशिप कर लेते हैं। तो कैसे हम ये देखें इंडियन यूनिवर्सिटी को भी राइट फॉरेन पार्टनर मिले और फॉरेन यूनिवर्सिटी को भी राइट इंडियन पार्टनर मिले, तो इस पर हम काम कर रहे हैं। इसी तरह से क्रेडिट ट्रांसफर क्या है, इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस, इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस हर यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, अभी नहीं है, पर देन यूजीसी ने रेगुलेशन निकाला कि हर यूनिवर्सिटी को इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस होना चाहिए। क्या करना है बताया, पर कैसे करना है ये हम बता दें। कैसा ऑफिस होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, कितना स्टाफ होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, उनको क्या क्या काम करने के लिए, काम कैसे करना चाहिए, कैसे यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच करना है, ये सब हम बताते हैं एट AIU. So at AIU we are promoting internationalization in a big way, whether it is how to establish an international students office, how to do partnerships, how to find a partner, how to even do the कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द टीचर्स, क्योंकि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में नया स्टाफ नहीं रखते, एग्जिस्टिंग स्टाफ को जिम्मेवारी मिलती है कि तुम इंटरनेशनलाइजेशन करो, उस बेचारे को पता ही नहीं करना कैसे कैसे करें, तो हम उनकी ट्रेनिंग भी करते हैं कि कैसे इंटरनेशनलाइजेशन करना है। तो इस तरह का मुझे लगता है कि अगर हम इस तरह की अप्रोच फॉलो करेंगे तो आने वाले समय में इंडिया डेफिनेटली एक ग्लोबल डेस्टिनेशन बनेगा। एंड अफोर्डेबिलिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन अफोर्डेबल रेट में मिल सकता है। तो अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन का ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाने के लिए AIU से तो हम गवर्नमेंट है ही है, गवर्नमेंट वांट्स इट, AIU से वी आर हेल्पिंग इट, आई थिंक वी ऑल कैन हेल्प इट। अगर हम अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह से काम करें कि फॉरेन स्टूडेंट्स को सही माहौल मिले, सही माहौल का मतलब है इकोसिस्टम, वेदर इट इज़ इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल हॉस्टल्स, वेदर इट इज़ इन टर्म्स ऑफ गुड फूड, वेदर इट इज़ इन टर्म्स ऑफ हाइजीनिक टॉयलेट्स। कई बार हाइजीनिक टॉयलेट्स ना होने की वजह से बच्चे चले जाते हैं, तो राइट और फिर कई बार बच्चों जो बाकी बच्चे इंडियन बच्चे उनका उनकी तरफ एटीट्यूड कैसा है, मतलब उनको अलग अलग रखते हैं कि अपने साथ इंटीग्रेट करते हैं। तो ये सब सबको सिखाना पड़ता है, इस सबकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना पड़ता है। तो अगर हम ये सब अपनी यूनिवर्सिटी में करेंगे, आई एम श्योर
India will very soon become a global destination for affordable quality education, and let us all pledge that we will ensure that this happens. जो 49,000 है ना, उसको 49 लाख बनाना है. वो कैसे करेंगे, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी हर सेक्टर में, वेदर इट इज वीजा के इशू है गवर्नमेंट लेवल पे, या आपकी यूनिवर्सिटी में इशू है कि एमबीएस क्रिएट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, माहौल तैयार करना. ये हम लोग जैसे AIU है, दिस इज द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी एसोसिएशन इन द वर्ल्ड. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट AIU. AIU दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी एसोसिएशन है विद 1100 यूनिवर्सिटीज एज इट्स मेंबर्स. और इतने बड़े एसोसिएशन के पास जो काम है बहुत सारे हैं. इट्स नॉट ओनली इंटरनेशनलाइजेशन, एकेडमिक्स, रिसर्च, स्पोर्ट्स, कल्चर, इंटरनेशनलाइजेशन, मतलब वी बिलीव इन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स. So we are trying to do all this. So we need the help of everybody to take our country forward. Thank you very much. Thanks a lot.